یہ کہانی ہے ایک سفر کی، ایک ایسے سفر کی جو 1400 سال پہلے شروع ہوا، ایک پختہ عزم کے ساتھ جو نسل در نسل آج بھی جاری ہے، جس نے دنیا کی انتہائی غیر معمولی عمارتوں کے طرز تعمیر کو متاثر کیا، جن کے ذریعے آپ اپنے ماضی اور مستقبل سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ مسجد ان مساجد میں سے ایک ہے جس کے بارے میں ساری دنیا بات کرتی ہے۔ یہ مقام جہاں سے سفر شروع ہوا، صدیوں گزرنے کے بعد بھی وہ سفر آج بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ سفر جو لاکھوں لوگوں کو دنیا بھر سے ایک شہر، ایک عمارت اور ایک مرکز تک لے آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنی روح کی خاطر وہاں جانا چاہیے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ ایک سفر جو پوری زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ یہ کہانی ہے مسلمانوں کے عقیدے کی۔ اسلام کی یہ کہانی سنائیں گے ملت اسلامیہ کے 7 لوگ اپنے منفرد سفر کے ذریعے۔ 5 مرتبہ دنیا کے ہر خطے میں ہزاروں لاکھوں افراد روزانہ نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اسی نماز کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان مسلسل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اس شہر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہے جہاں سے یہ مذہب شروع ہوا۔ اسلامی دنیا کا سب سے پہلا اور اہم نشان عظمت مکہ۔ مکہ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں سے 1400 سال پہلے اسلام کی تعلیمات دینا شروع کیں۔ مکہ کی عظیم الشان مسجد حرام میں وہ عمارت ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا سب سے اہم مقام ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی کوئی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ کعبہ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ کعبہ کا لفظی مطلب وہی ہے جس طرح کعبے کو تعمیر کیا گیا ہے، یعنی چوکور۔ یہ خدا کا گھر ہے اور اس کی موجودگی کی یقین کی علامت، جہاں جانا ہر مسلمان کی خواہش ہے، جہاں نہ اللہ کی کوئی تصویر ہے اور نہ اللہ کی کوئی نمائندگی۔ ہم اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتے، وہ لا شریک ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مکہ میں سب سے خوبصورت چیز خود خانہ کعبہ ہے، اور اس کا حسن اس کی سادگی میں ہے۔ ایک کالا چوکور کمرہ جس کی سادگی میں اتنی خوبصورتی ہے کہ آسمان سے اترا ہوا لگتا ہے، اور لوگ اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ ایک انتہائی پرسکون مقام جہاں لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں کھڑے رہ کر بھی پریشانی نہیں ہوتی، شاید اس لیے کہ قرنوں سے خدا کا گھر اسے ہی مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ کعبہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے ہوئی، اور جنہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا ان کا ذکر یہود اور نصارہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم۔ کعبہ کی تعمیر کا مقصد صرف ایک، ہر زمانے اور ہر شخص کے لیے خدا کی وحدانیت کا اظہار۔ لاکھوں مسلمان طواف اور عمرے کے لیے ہر سال اس شہر میں آتے ہیں جہاں کعبہ ہے۔ بہت سے مسلمانوں کے لیے کعبہ پر پڑنے والی پہلی نظر زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کے لیے کعبے پر پڑنے والی پہلی نظر زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار مکہ کی مسجد حرام میں قدم رکھا، وہ میری زندگی کا عجیب و غریب لمحہ تھا۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آگے قدم بڑھاتے ہیں اور اچانک کعبہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ لوگوں کا ایک سمندر طواف کر رہا ہوتا ہے، پورا ماحول اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور ہر انسان عاجزی کا پیکر۔ میں نے لوگوں کو حرم کعبہ میں چلتے پھرتے دیکھا ہے، اور جو چیز سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں میں تیرتے آنسو ہیں۔ یہاں پہنچ کر خدا کی بڑائی کے سوا اپنا وجود ایک بے حقیقت ذرے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہی مرکز ہے جس کی جانب رخ کر کے دنیا کے مسلمان 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ ہر بار اللہ کے رسول کے پیغام کو دہراتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس پیغام نے اس مذہب کی بنیاد رکھی جس کی دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ ماننے والے موجود ہیں۔ انہی میں 6 ایسے لوگ بھی ہیں
جو پہلی بار عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان سب کا مکہ جانے کا خواب پورا ہونے والا ہے اور صرف چند دن بعد ان کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ یہ سب ہی دنیا کی بہت اہم اور خوبصورت مساجد کے قریب رہتے ہیں اور وہاں جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس ایک بٹا ہوا شہر ہے جسے 2 مرتبہ تباہ کیا گیا اور 22 مرتبہ محاصرہ کیا گیا اور 44 بار فتح کیا گیا۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ وہ مقامات ہیں جنہیں 23 سالہ سمیع عابدین ہر روز دیکھتا ہے جب وہ شہر میں اخبار پہنچانے کے لیے مختلف علاقوں میں جانے کے لیے شہر کی سڑکوں سے گزرتا ہے۔ سمیع ایک فلسطینی ہے جو مشرقی بیت المقدس میں رہتا ہے اور وہیں پلا بڑھا ہے۔ قبۃ الصخرہ کے قریب ہی مسجد اقصی ہے۔ مسلم امہ کے لیے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کی 2 مساجد کے بعد یہ تیسری سب سے محترم اور مقدس مسجد ہے۔ جب بھی سمیع کو وقت ملتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے۔ آج بھی وہ یہاں عصر کی نماز پڑھنے آیا ہے۔ جب بھی میں مسجد اقصی میں داخل ہوتا ہوں تو ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہوں، اندر سے خوش محسوس کرتا ہوں۔ دنیا کے ہنگامے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، پریشانیاں اور مسائل بھول جاتا ہوں، دنیا سے بیزار ہو جاتا ہوں تو یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں، نماز اور قرآن پڑھتا ہوں اور مسجد اقصی کے ایک ایک نقش کو دیکھتا رہتا ہوں۔ میں مسجد کے صحن میں گھومتا رہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ اتنا حسین ہے کہ اسے دیکھ کر ہی انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ مسجد اقصی، جس کو شاید پہلی بار 7ویں صدی کے آخر میں تعمیر کیا گیا، جہاں ہزاروں افراد ایک وقت میں عبادت کر سکتے ہیں، یہ ایک بیزیلکا کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ڈھلواں چھت والی عمارت ہے، جس طرح گرجا گھر کی عمارت ہوتی ہے، جس میں درمیان میں راستہ اور دونوں طرف بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، مگر یہاں راستے کے دونوں جانب ایک ایک نہیں بلکہ 5 صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح یہ مسجد بہت کشادہ ہو جاتی ہے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس طرح یہ غیر معمولی مسجد جذباتی اور علامتی قوت کے ساتھ غیر محدود وسعت کا احساس بن جاتی ہے، ایک ایسی لامحدود وسعت جس کا کنارہ نہیں اور جو بے کنار ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس عمارت کی تعمیر اور ساخت پر جس چیز کا اثر نمایاں نظر آتا ہے وہ قرآنی آیات ہیں، جن کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس بات پر ایمان لانا سب سے پہلے فرض ہے اور دین کا پہلا رکن۔ رات کو سمیع کے گھر والے ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، مگر مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نہیں، بلکہ مکہ کی جانب رخ کر کے، جس کا حکم 1000 سال سے بھی پہلے دیا گیا، اور جس شہر کی طرف سمیع کا سفر اگلے چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ دنیا کے ایک بالکل مختلف خطے میں عیسیٰ رہتا ہے، جو مکہ کے لیے اپنے پہلے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ اسپین کے شہر غرناطہ میں رہتا ہے، جہاں یورپ کی انتہائی خوبصورت عمارتیں نظر آتی ہیں۔ الحمرا کے محلات، مسلمانوں کا تعمیر کردہ اگلا شاہکار۔ اسپین کے شہر غرناطہ میں فجر کی اذان سے 19 سالہ عیسیٰ لوپیز کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔
नमाज पढ़ने से पहले वुजू के जरिए अपना चेहरा और हाथ पांव धोकर पाक साफ करता है। ईसा स्पेन के एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और गरनाता में परवरिश पाई। Bueno, me siento orgulloso porque Granada es mi ciudad donde nací. मुझे इस बात पर फख्र है कि गरनाता मेरा शहर है। मैं यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा। तो जब दूर दराज से लोग आपका शहर देखने आते हैं, अलहम्रा के महलात और हर उस चीज़ को देखते हैं जो गरनाता में है, तब बहुत अच्छा लगता है। Pues uno se siente orgulloso, ¿no? 13वीं सदी के अरब हुक्मरानों ने उंदुलुस में अलहम्रा के महलात तामीर किए, जिन्हें मुसलमान माहिरीन तामीर ने डिजाइन किया था। ये महलात कुरान में जन्नत के तस्वुर से मुतासिर होकर तामीर किए गए और इस्लामी तर्ज तामीर का हसीन नमूना है। कुरान में 22 मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे बागात का जिक्र है जिनके नीचे दरिया बहते हैं। एक मुसलमान के लिए जन्नत का तस्वुर एक नखलिस्तान की तरह है। घने सायादार दरख्त, इनके दरमियान बनी हुई इमारतें, शानदार इमारतें, तह दर तह इमारतें, रास्ते, बैठने की जगहें और महलात। और अलहम्रा को इस तस्वुर का अक्स कहा जा सकता है इस जमीन पर। यूरोप में अलहम्रा वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सयाह आते हैं, लेकिन उनमें से चंद ही हैं जो गरनाता में वादी के दूसरी जानिब बनी हुई नई मस्जिद को देखने आते हैं, जहां ईसा फजर की नमाज पढ़ने आता है। दिन की पहली नमाज फजर पौ फटने से सूरज निकलने के दरमियान किसी भी वक्त अदा की जा सकती है। मेरे लिए फजर की नमाज पढ़ना बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये दिन शुरू करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप जल्दी नमाज पढ़ते हैं, अपने दफ्तर में या घर पर तन्हा नमाज पढ़ते हैं, इसलिए कि आप जानते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद से उठते ही नमाज पढ़ते हैं, तो दिन शुरू करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ईसा की पैदाइश से पहले इसके वालिदैन ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सन 1970 की दिहाई में उन्होंने डिक्टेटर फ्रैंको के बाद एक आजाद स्पेन में ताज़ा तरीन मजहबी रवादारी की फजा को महसूस किया और देखा। बहुत सी चीजें एक साथ रूनुमा हुई और हम उस वक्त किसी ऐसे मुतबादिल की तलाश में थे जो हमारी जिंदगी में एक अनजानी कमी को पूरा कर सके, और उस वक्त इस्लाम हमारे सामने एक मुतबादिल की सूरत में आ गया। हम हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि इस बारे में कभी तारीख की किताबों में या कभी स्कूल में ना सुना था ना पढ़ा था। हालांकि उंदलस का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। हमें तो बस ये पढ़ाया गया कि अरब आए, उन्होंने जनूबी स्पेन को फतह किया और फिर उनको निकाल बाहर किया। बस स्पेन में हम इस्लाम और उनकी तहजीब के बारे में इतना ही जानते थे। फिर हमें पता चला कि गरनाता में मुसलमानों की एक बस्ती मौजूद है। उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हमारे लिए अपने दिल और अपने दरवाजे खोल दिए और हमें ऐसा लगा जैसे अपनों में आ गए। यही हम चाहते थे, एक ऐसी तब्दीली जो हमें इनकलाब बर्पा कर दे। फिर हमने इस्लाम कबूल कर लिया और इस दुनिया में अपने वजूद को एक दूसरी नज़र से समझने की कोशिश करने लगे। जब ईसा के वालिदैन ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया तो सबसे पहले उन्होंने शहादत दी, जो इस्लाम का पहला रुकन है। एक मुसलमान की मजहबी जिंदगी इस्लाम के 5 अरकान के गिर्द घूमती है और इसकी इब्तिदा शहादत से होती है, जो अपने मुसलमान होने की गवाही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। दर हकीकत यही ईमान का ऐलान है। शहादत देना दरअसल इस बात पर यकीन करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। इस बात को दिल से मानना ही शहादत देना है। ऐसा करने के बाद आप मुसलमान हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे ताकतवर रुकन है और सबसे पहले इसको तस्लीम करना ज़रूरी है। शहादत ही एक मुसलमान की सही तर्जुमानी करती है, चाहे वो पैदा मुसलमान हो या फिर इस्लाम कबूल करे। ये वो अल्फाज हैं जो हर मुसलमान बच्चा पैदा होते ही सुनता है, और आखिरी अल्फाज भी जो मौत से पहले हर मुसलमान सुनता है। इन अल्फाज की अहमियत बहुत ज्यादा है और इन्हीं अल्फाज ने पूरी मुस्लिम उम्मा को जोड़ रखा है।
बर आज़म यूरोप के किनारे पर उस जगह से मशरिक की जानिब 1000 मील दूर एक और अजीम इमारत है जो इस्लाम के दौर खिलाफत की अजमत की याद दिलाती है, खिलाफत उस्मानिया, जिसने इस्तांबुल में रहकर अपनी ताकत का दायरा न सिर्फ पूरे यूरोप बल्कि उससे भी दूर तक फैला दिया था। 400 साल पहले यूरोप की इस इंतहाई दीदा ज़ेब इमारत पर काम शुरू हुआ, नीली मस्जिद, और इस्लामी दुनिया की तीसरी अहम इमारत। नीली मस्जिद का नाम मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में लगाए गए 20,000 नीले टाइल्स की वजह से मशहूर हुआ, जो खिलाफत उस्मानिया की शान और शौकत की दास्तान सुनाते हैं। मैं जब भी किसी मस्जिद के बारे में सोचता हूँ और अपने चश्मे तसव्वुर से देखता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ नीली मस्जिद उभरती है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये मुसलमानों के तहजीब व तमद्दुन के उरूज की अलामत है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरे ख्याल में ये इस्लामी सोच, इल्मियत और शाइस्तगी को बयान करती है। एक ऐसी इमारत जिसे शायद दोबारा भी बना सके। मुझे ये मस्जिद उम्मीद की अलामत लगती है, और शायद जो कामयाबियों में हमने माजी में हासिल की वो हो सकता है मुस्तकबिल में भी हासिल कर सकें। तो मेरे लिए नीली मस्जिद सिर्फ एक हसीन और पुरजलाल इमारत नहीं, बल्कि उम्मीद और आस का एक ऐसा ढांचा है जिसका माजी शानदार था और जिसका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। एरहान नीली मस्जिद की तरफ गामजन है ताकि जोहर की नमाज अदा कर सके। ये नमाज सूरज का आधा सफर तय होने के बाद अदा की जाती है और असर से पहले तक अदा की जा सकती है। मैं इसलिए नमाज पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज अदा करूँ। नमाज पढ़ने से मेरे और अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक पैदा हो सकता है। मैं उससे बात कर सकता हूँ और मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी को वैसा बना सकता हूँ जैसा वो चाहता है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान होना एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है, एक मुसलसल अमल, ताकि हमेशा सही रास्ते का इंतखाब करते रहें। और सबसे अहम ये कि एक अच्छे मुसलमान को एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में इस्लाम हर मुसलमान को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। नमाज एक मुसलमान की जिंदगी की बुनियाद है और इस्लाम का पहला रुकन। नमाज एक अमली मुजाहरा है उस काम का जो आप करना चाहते हैं। जब आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो उसके माबूद होने की गवाही देते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रुकू में जाते हैं तो अल्लाह की ताकत और अजमत बयान करते हैं, और जब सजदे में सर झुकाते हैं तो उसकी बड़ाई बयान करते हैं। अपना सर झुकाना, अपने नफ्स को झुकाना जिसे हम सबसे बड़ा मानते हैं और जो शायद सबसे मुश्किल काम भी लगता हो, मगर इसी सर को अल्लाह के सामने जमीन पर रख देते हैं। दुनिया भर में इस्लाम के मानने वालों को चाहे जिस चीज ने भी तकसीम कर रखा हो और चाहे उनकी रोजमर्रा जिंदगी एक दूसरे से कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, मक्का की सरजमीन उन सबको एक बना देती है। अपने सफर के अगले मरहले में हम यूरोप से निकलकर मगरबी अफ्रीका चलेंगे और देखेंगे कि दुनिया की एक और मुनफरिद मस्जिद में नमाज जुमा का क्या एहतमाम होता है। मिट्टी और गारे से बनी दुनिया की सबसे बुलंद मस्जिद, इस्लामी दुनिया का एक और नायाब शाहकार। जैने माली में जुमे की तपती हुई गर्द आलूद दोपहर। 12वीं सदी में अरब ताजिरों के जरिए माली में इस्लाम पहुंचा। आज ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, मगर दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक। जैनी के कदीम शहर में दुनिया की सबसे मुनफरिद मिट्टी गारे से बनी मस्जिद हमारे सामने है। ये मस्जिद 13वीं सदी में माली के इब्तदाई मुसलमान हुक्मरानों ने तामीर करवाई। आमुद छाम ने यहीं जैने में परवरिश पाई, मगर आजकल अपने खानदान के साथ दारुल खिलाफा बामाकू में रहता है, लेकिन अक्सर इस शहर में भी आता जाता रहता है। जैने की ये मस्जिद दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है।
जैने का शहर एक ऐसा शहर है जहां इस्लामी तहजीब की बहुत सी निशानियां मौजूद हैं और मेरे ख्याल में इस मस्जिद को पहली बार 13वीं सदी में तामीर किया गया और ये हमारा कौमी विरसा है, एक शानदार कौमी विरसा। जैने की मस्जिद मगरबी अफ्रीका के मखसूस तर्ज तामीर का नमूना है जिसे मट्टी और गारे से बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे मट्टी से ही क्यों बनाया गया। हो सकता है मट्टी में दबाव बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा हो, यानी उमूदी दबाव से बिखरती ना हो, लेकिन मट्टी में इतनी ताकत होती नहीं है। तो अगर आप गुंबद, मेहराब या सीधी छत तामीर करना चाहते हैं और उसके लिए मट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, तब सहारे के लिए दीवारों को बहुत मोटा बनाना पड़ेगा और इन दीवारों को ज्यादा तादाद में और करीब करीब बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से दरमियानी जगह तंग हो जाएगी। लातादाद सुतूनों की वजह से मस्जिद में थोड़ी तारीकी और खामोशी मौजूद रहती है और हकीकी मानों में सादगी में रूहानियत का एहसास होता है। इनके पास पैसा नहीं, मगर इनके पास रिवायात हैं जो यहाँ नजर आती हैं। पता है, इमाम साहब ने बताया कि हमारी दौलत हमारी सकाफत में है जो दुनिया के एक एक दूसरे हिस्से से हम तक पहुंची है। सादगी और खुदा पर मुकम्मल यकीन ही ईमान का जुज है और मस्जिद के अंदर मुझे इन्हीं बातों का एहसास होता है। जैने के टाउन सेंटर में जुमे की रौनक देखने वाली होती है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये हफ्ते का सबसे अहम दिन होता है। आमदू भी यहाँ एक बड़े इज्तिमा के साथ जुमा पढ़ने आया है। पूरे हफ्ते की नमाजों में से जुमे की नमाज एक बड़े इज्तिमा में अदा करना लाजिम किया गया है। ये जोहर की नमाज की जगह पढ़ी जाती है, जैसे ईसाइयों में संडे सर्विस होती है। जुमे की नमाज में हमेशा इमाम की जानिब से एक खुतबा दिया जाता है। वो जुम्मे का दिन था जब अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक को मुकब्बल किया, और वो भी जुम्मे का ही दिन था जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी और उनको अबुल बशर बनाया, यानी तमाम इंसानों का बाप। और इसीलिए अल्लाह ने उस दिन को जमात का दिन करार दिया, जिसको जश्न की तरह मनाया जाए। आमदू अपने वालिदैन की मदद से मक्का जा सकता है, मगर माली में रहने वाले ज्यादातर अफराद इसकी इस्तात नहीं रखते। इस्लाम का तीसरा रुकन है ज़कात, जिसका ताल्लुक दौलत की अदम मसावत से है। इसीलिए मुसलमानों पर आमदनी का 2.5% अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म दिया गया। आमतौर पर ज़कात ज़रूरतमंद यानी गरीब लोगों को दी जाती है, मगर आप अपने ज़रूरतमंद और गरीब घर वालों और रिश्तेदारों को भी ज़कात दे सकते हैं। बाज़ इस्लामी ममालिक में ज़कात जमा करने के लिए बाकायदा इदारे बनाए गए हैं, जहां आप चाहें तो ज़कात दे सकते हैं, और जो निहायत दयानतदारी से यतीमों और ऐसे दूसरे लोगों का ख्याल करते हैं। कुछ इस्लामी ममालिक में रियासत खुद ज़कात जमा करती है और गरीब मुस्तहिक अफराद में तकसीम करती है। मौजूदा इस्लामी माशरों में समाजी इंसाफ और अदल की जितनी ज़रूरत आज है, शायद पहले कभी न थी। इस्लाम का तीसरा रुकन इन्हीं मसाइल को सुलझाने का एक माशरती तसव्वुर देता है। यहाँ से हजारों मील दूर जब सूरज गुरूब होता है, तब ईरान में इस्फहान की मस्जिद इमाम में आजान की आवाज गूंजने लगती है। जब इस मस्जिद को तामीर किया गया, तब ये सल्तनत फारस की सबसे ज्यादा मुतासिर कुन इमारत थी।
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے یہ ایک خاموش اور پرسکون جگہ ہے. پھر یہاں تاریخ بھی بکھری ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سے پہلے ہزاروں افراد اس جگہ پر اپنی اپنی نماز ادا کر چکے ہیں اور آپ اپنے آپ کو انہی کا تسلسل محسوس کرتے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جس پتھر پر آپ بیٹھے ہیں اسی پتھر پر پہلے بھی بہت سے مسلمان بیٹھ چکے ہیں. آپ ماضی اور مستقبل دونوں سے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ ایک ایسی عمارت ہے جو مسجد کے گرد گھومتی زندگی کا مظہر ہے. مسجد ایک عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف معاملات میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. اصفہان میں مسجد امام یا مسجد شاہ کے نام سے مشہور یہ مسجد 16ویں اور 17ویں صدی کے ایرانی طرز تعمیر کے تاج میں جڑے ہیرے کی مانند ہے. اس زمانے میں تعمیر کی جانے والی سب سے بڑی مسجد اور شاہانہ جاہ و جلال کی آئینہ دار ہے. اور یہ بات بھی یاد دلاتی ہے کہ اسلامی دنیا میں مسجد کی حیثیت وہ نہیں جو عیسائیت میں چرچ کی ہوتی ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں قانون کی پاسداری کی جاتی ہے اور جہاں تعلیم دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک میں ٹاؤن ہالز نہیں ہوتے، یہاں عدالتیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب کام مسجد میں ہی انجام دیے جاتے تھے. تب مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کی مانند تھی، اور یہ مسجد اسی زمانے کی یاد دلاتی ہے. رانا رحیمپور کی عمر 25 سال ہے اور وہ انگریزی پڑھاتی ہے. رانا شیعہ مسلمان ہے. مسلم آبادی کا تقریباً 20% شیعہ ہیں، مگر ایران میں ان کی اکثریت ہے. میں دن میں کام کرتی ہوں، اپنے مدرسے جاتی ہوں اور انگریزی کی پرائیویٹ ٹیوشنز بھی دیتی ہوں، اور شام کا وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی ہوں. ہم ہفتے میں 3 مرتبہ جم جاتے ہیں. ہم ہفتے میں ایک بار عموماً ویکینڈ پر ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے جاتے ہیں. ہم کنسرٹس، سینما اور کافی کے لیے بھی جاتے ہیں. کبھی ریسٹورانٹس بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں. بالکل ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے دنیا میں کہیں بھی نوجوان زندگی گزارتے ہیں. ایرانیوں کی زندگی میں سیاست اور مذہب ایک دوسرے سے گھلے ملے ہیں. رانا بھی دوسری ایرانی نوجوانوں کی طرح ایک متوازن زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے اور مذہب کو انسان کا نجی معاملہ سمجھتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے. مجھے رمضان بہت پسند ہے کیونکہ روزہ رکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہی ہوں. آپ کے سامنے کھانا ہے، پانی ہے، لیکن آپ کچھ نہیں کھاتے پیتے، صرف اس لیے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے. یہ آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی آسان نہیں ہوتا اپنے آپ کو اپنی پسندیدہ چیزوں سے روک لینا، کیونکہ اللہ ایسا کروانا چاہتا ہے اور یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے. رمضان کا مہینہ بہت عام ہے. اسلامی کیلنڈر میں یہ 9واں مہینہ ہے اور اسی مہینے میں روایات کے مطابق قرآن کا نزول ہوا. اس لیے یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے. در حقیقت یہ ایک مشقت والا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان رمضان کے آخر میں جسمانی اور روحانی محنت کی وجہ سے کافی تھکن محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دن رات کے معمولات بالکل بدل جاتے ہیں. حالانکہ رانا ایسے ملک میں رہتی ہے جس کے حکمران بے لچکدار ہیں، لیکن جس مذہب کی پیروی وہ کرتی ہے اور جن باتوں پہ اس کو اعتقاد ہے وہ اسے ہر قسم کے سیاسی اختلافات سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. رانا جس مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی ہے وہ اسلامی عقائد کے سدا بہار رسم و رواج کے لیے آج بھی ایک خوبصورت خراج تحسین پیش کرتی نظر آتی ہے. مسلمانوں کے دن کا اختتام عشاء کی نماز پر ہوتا ہے اور اسلام کے آخری رکن کی جانب سفر کرتے ہوئے ہم سلطنت مغلیہ کے ایک مرکز تک آ پہنچے ہیں جہاں فن تعمیر کا ایک ایسا ورثہ ہمارے سامنے ہے جو آج بھی اپنی عظمت سے سحر زدہ کر دینے کی طاقت رکھتا ہے. پاکستان میں بھی دنیا بھر کے دوسرے اسلامی ممالک کی طرح اسلام کا ایک صوفیانہ انداز موجود ہے اور بادشاہی مسجد آنے والے نمازی اس کی تعمیر میں صوفی رنگ دیکھ سکتے ہیں. اصل میں رات کو میں دیر تک جاگتی رہی کیونکہ دفتر کا بہت سارا کام مجھے گھر پر مکمل کرنا تھا، اسی لیے دیر سے سو کر اٹھی. اور اب میرا وین والا باہر کھڑا ہارن بجا رہا ہے اور مجھے بہت دیر ہو رہی ہے. نورین ایک پبلک ریلیشنز کمپنی میں کام کرتی ہے اور پاکستان کے شہر لاہور میں رہتی ہے. اس کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اور وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے.
मेरा आज का दिन बहुत मसरूफ़ है. मेरी 2 मीटिंग्स हैं और एक शूटिंग. मेरे ख्याल है वो सारी रात चलेगी. लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और 16वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का एक अहम मरकज था. यहाँ पुराने लाहौर के क़ल्ब में बादशाही मस्जिद है, उस जमाने के फन तामीर का एक शानदार शाहकार. जब बादशाही मस्जिद तामीर की गई तब ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी. सच बात यह है कि आज भी इसको देखें तो इसकी अजमत और तासुर इसी तरह बरकरार नजर आता है. यहाँ दरवाज़ों को इस तरह तामीर किया गया है कि एक के बाद एक दरवाज़ा सामने आता चला जाता है और आपको लामकां की जानिब सफ़र का एहसास होने लगता है. एक ऐसा सफ़र जो हमेशा जारी रहेगा. लेकिन मुझे बादशाही मस्जिद की तामीर में जो बात मुतासिर करती है वो ये है कि मस्जिद बहुत कुशादा और हवादार है और आप मस्जिद में जहाँ कहीं भी हों ठंडी हवा के झोंके महसूस होते रहते हैं. अब मुझे लगता है कि बरसगीर में ज़माने के इस्लाम का तसव्वुर भी ऐसे ही कुशादा था. इसकी बाहें सबके लिए खुली हुई थीं और कोई भी इस्लाम के दामन में पनाह ले सकता था. सूरज गुरूब होने के बाद जब रात बादशाही मस्जिद पर उतरने लगी तब नौरीन दिन की 5वीं और आखिरी नमाज इशा पढ़ने वहां पहुंचे. इशा की नमाज सूरज गुरूब होने के 1.5 घंटे बाद से लेकर फजर से पहले तक पढ़ी जा सकती है. दुनिया में बनी दीगर मसाजिद की तरह बादशाही मस्जिद में भी औरतें और मर्द अलग-अलग हिस्सों में नमाज अदा करते हैं. इस्लाम का 5वां रुकन हज, शहर मक्का की ज़ियारत. हज इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में किया जाता है, मगर जो लोग हज नहीं कर पाते वो साल में किसी भी वक्त ज़ियारत और तवाफ के लिए जा सकते हैं, जिसे उम्रा कहते हैं. नौरीन भी उम्रा करने का इरादा कर रही है और पहली बार पाकिस्तान से बाहर के सफर पर जाएगी. ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है. मुझे यकीन है कि वहाँ जाने से रूहानी तौर पर और ज़्यादा मजबूत हो जाऊंगी और अपने आप को अल्लाह से ज़्यादा नज़दीक महसूस करूंगी. वो अंदरूनी तौर पर अपने आप को बदला हुआ महसूस करते हैं. उमूमन जब लोग उम्रा करके वापस आते हैं तब वो बिल्कुल तब्दील हो चुके होते हैं, क्योंकि उनमें रूहानी तब्दीली आई होती है. उनकी सोच का अंदाज बदल चुका होता है. उनका दिलो दिमाग और फिक्र एक नए महवर पर घूम रहे होते हैं. स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और उनका सोचने का अंदाज बदल जाता है. एक नए स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं वो. नौरीन उम्रे पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है. मक्का में वो उन ज़ायरीन से भी मिलेगी जो दुनिया के दूसरे शहरों से यहाँ आ रहे हैं, जहाँ से ये दीन शुरू हुआ था. अपने सफर के अगले हिस्से में हमें हरम काबा में कैमरे ले जाने की इजाजत मिल गई है ताकि हम इस्लामी दुनिया के सबसे पहले और मुक़द्दस तरीन मकाम पर अपने ज़ायरीन की जिंदगी के अहम तरीन सफर के तासुरात रिकॉर्ड कर सकें. बैतुल मक़दस में समी मक्के की जानिब अपने सफर की तैयारियों में मसरूफ है. इसके वालिद का टेलरिंग का बिजनेस है और वो कई बार मक्का जा चुके हैं. वो लम्हा जब पहली बार काबा पर नजर पड़ती है, उस लम्हे की कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता. आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं. यहाँ तक तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं. तमाम अरकान अदा करने में 2 घंटे लगते हैं और आंखों से आंसू नहीं थमते. ये वो कैफियत है जिसकी मैंने कभी अपने आप से तवक्को नहीं की थी. समी अपने सफर पर थोड़ा जल्दी रवाना हो रहा है क्योंकि वो बस के जरिए बैतुल मक़दस से उर्दुन और फिर सऊदी अरब जाएगा.
समी का बस का सफर बाकी तमाम जायरीन से मुख्तसर है और वो बाकी लोगों से पहले भी पहुंच रहा है। मक्का जाते हुए रास्ते में वो एहराम बांधेगा ताकि उम्रा अदा कर सके। मर्द सफेद रंग की 2 चादरें पहनते हैं जो पाकीज़गी और अल्लाह के सामने मसावात की अलामत हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं उम्रा अदा करने के लिए तैयार हूँ। उम्रा अदा करना मेरा ख्वाब था और मैंने अभी कपड़े बदल कर एहराम बांधा है, जिसे पहनकर तमाम इंसान बराबर हो जाते हैं। ये लिबास अमीर और गरीब, काले और गोरे और हर कौमियत के अफराद को एक सिफ में खड़ा कर देता है। अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। अली अल मुल्ला उन 12 अफराद में से एक हैं जो हरम काबा में आज़ान देते हैं। इस काम की जिम्मेदारी उनके खानदान में सदियों से चली आ रही है। मेरे वालिद, मेरे मामू, मेरे चचा, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरा ननियाल, मेरा ददियाल, सबके सब मौज़न थे। सबका ताल्लुक हमारे ही खानदान से है। मस्जिद हराम के तमाम मौज़न हमारे रिश्तेदार हैं। मेरा बचपन मस्जिद हराम में गुजरा। हम यहाँ दर्स लेते और उसके बाद यहीं मस्जिद हराम में भागते फिरते यहीं पर खेलते। लेकिन हम यहाँ फुटबॉल नहीं खेलते थे, बस एक दूसरे के पीछे भागते, हंसी मजाक करते और बैठकर गप्पे लगाते थे। मस्जिद हराम के अंदर कभी सहन और कभी बरामदे में। वो शहर मक्का जिसमें अली उल मुल्ला ने परवरिश पाई अब बिल्कुल बदल चुका है, मगर यहाँ की रवायत नहीं बदली। काबा का खिलाफ हमेशा से सुनहरी कारचोप के साथ काला ही रहा है और बहुत कम लोगों को काबा के अंदर जाने की इजाजत है। साल में 2 मरतबा इसे सफाई के लिए खोला जाता है। खाना काबा के कलीद बरदार शेख अब्दुल अजीज शेवी हैं और सिर्फ वही काबे का दरवाजा खोल सकते हैं। कलीद बरदारी की ये रिवायती जिम्मेदारी उनके खानदान में रसूल खुदा के जमाने से चली आ रही है। कलीद बरदारी की जिम्मेदारी अल्लाह की जानिब से अता हुई। अल्लाह के हुक्म से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी एक मखसूस घराने को बख्शी। मुझसे पहले ये जिम्मेदारी मेरे भाई के पास थी। ये जिम्मेदारी घर के एक बड़े से दूसरे बड़े को दी जाती है, मगर मौरूसी नहीं। मेरा मतलब है चाबी खानदान के सबसे बड़े या बुजुर्ग को दी जाती है। बाप से बेटे को मिलना जरूरी नहीं। काबे के अंदर कुछ नहीं है। अंदर संगे मरमर का फर्श है और दीवारों पर चंद तुगरे लगे हुए हैं जिस पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। काबे का अंदरूनी हिस्सा किसी चीज की अलामत नहीं। जो कुछ भी है काबे के बाहर है। काबे का मकसद मुसलमानों में एक सही सिमत का एहसास पैदा करना है। जब आप काबे के अंदर जाते हैं तो सिमत का एहसास खत्म हो जाता है। आप जिस सिमत में दिल चाहे रुख करके नमाज अदा कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है, जब कभी सरबराहान मुमलिकत को काबे के अंदर ले जाया जाता है तब उनका पहला सवाल होता है कि किस तरफ रुख करके नमाज अदा करें। जवाब होता है जिस तरफ दिल चाहे, क्योंकि काबे के अंदर सिमत का एहसास मिट जाता है। सब कुछ काबे के बाहर चारों तरफ फैला है और काबा दुनिया भर में फैले मुसलमानों के इत्तेहाद की सिमत फराहम करता है ताकि हमें पता चल सके कि हम किस जानिब जा रहे हैं। यहाँ मेरा मतलब इखलाकियात और हुस्न अमल से है। समी जैसे ही हुदूद हरम में दाखिल हुआ उसने तलबी पढ़ना शुरू कर दी। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ। मस्जिद हराम के दरवाजे से गुजरकर समी जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अचानक उसकी नजरों के सामने खाना काबा था।
फिर वो भी काबे के गिर्द 7 चक्कर लगाते हजारों लोगों में शामिल हो गया और तवाफ शुरू कर दिया। पहली अहम बात मरकज के गिर्द तवाफ करना है। अपनी जिंदगी के मरकज को तलाश करना है और काबा इसी तलाश की अलामत है। 7 बार चक्कर लगाना, नहीं मालूम ऐसा क्यों है। कुछ उलमा का कहना है कि आर्डर ट्रेडिशन में 7 के अदद से जुड़ा है, जिसका मतलब है अल्लाह की जानिब सफ़र, यानी अल्लाह से अपने ताल्लुक को फिर से जोड़ना। और मैं समझता हूँ कि ये अपने मरकज की तलाश की कोशिश है। नाकाबिले फरामोश, बहुत खूबसूरत और बहुत हैरत अंगेज़। मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह के करीब हो गया हूँ। मैं बैतुल मक़दस से काबा आया हूँ और ये बेहद हसीन है। इंतहाई शानदार, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए बात करना मुश्किल है क्योंकि मेरा दिल भरा हुआ है। तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद अब ये सफा मरवा पर सई करने जा रहा है। सई के दौरान भी ये एक मकाम से दूसरे मकाम तक 7 चक्कर लगाएगा। मुसलमानों का अकीदा है कि इस जगह पर हजरत इब्राहीम की ज़ौजा हजरत हाजरा ने अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में दौड़कर 7 चक्कर लगाए थे और यहाँ एक चश्मा उबल पड़ा था, वही चश्मा जो आज भी लाखों ज़ायरीन को पानी फराहम करता है। और एक बार फिर हम समझ सकते हैं दो चीजों के दरमियान ताल्लुक को। पानी की तलाश अलामत है पाकीज़गी की। अब इसे मरकज से जोड़ दें और इन दोनों को नमाज से, यानी हर चीज दूसरे से मुंसलिक है। इबादत, अल्लाह की वहदानियत, पानी की तलाश, अपनी जात के मरकज को ढूंढने की कोशिश, सब मिलकर एक जंजीर बनाते हैं। इन सब में पाकीज़गी है, रूहानियत है और कुर्बत है। लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक से आने वाले हमारे 4 दूसरे ज़ायरीन मक्का पहुंचने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इनकी आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर उन सब का ख्वाब एक है। उस शहर की जानिब उनका सफर शुरू होने वाला है जिसकी सिमत सारी जिंदगी उनका रुख रहा है। हमारे 4 ज़ायरीन जिस सफ़र को मुकम्मल करेंगे ये वो सफ़र है जो 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से किया जा रहा है। आज हर साल 60 से 70 लाख अफराद ये सफ़र इख्तियार करते हैं। नौरीन यहाँ अपने शौहर के साथ आई है। वो महरम के बगैर मक्के का सफर नहीं कर सकती। मर्दों ने कपड़े बदल कर एहराम बांध लिया है और वो उम्रा करने के लिए तैयार हैं। औरतें एहराम नहीं बांधती, मगर उनके लिए अपने सर और जिस्म को ढांपना लाजिम है। ये मेरी जिंदगी का वो लम्हा है जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। ये वो जगह है जिसकी तरफ मैं और तमाम मुसलमान 1400 साल से रुख किए हुए हैं और अब मुझे इस घर को देखने की सादत हासिल हो रही है। ये मेरी जिंदगी का सबसे पुरमसरत लम्हा है, मेरी जिंदगी का एक तारीखी लम्हा। मैं काबा से जितना नजदीक होता जा रहा हूँ, मेरा जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मेरा हलक खुश्क हो रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक यादगार लम्हा बन जाएगा, वो लम्हा जिसका मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया है।
یہ چاروں بھی کعبہ کا طواف کرنے والے ہزاروں لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں مسجد حرام میں عورت اور مرد علیحدہ علیحدہ طواف نہیں کرتے۔ میں دن میں 5 بار نماز ادا کرتا ہوں۔ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جاؤں مگر نماز میں میرا رخ کعبہ کی جانب رہتا ہے، اور آج میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا مانگ سکتے ہیں؟ آپ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ کعبہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ اللہ سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ کوئی دعا نہیں۔ اپنے جذبات پر مجھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں ایک ہی وقت میں ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کعبہ کی عظمت میری سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا حصہ ہے اور میں اس کا حصہ ہوں، اس میں شامل ہوں۔ میں بس کعبہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اللہ سے نزدیک ہوں۔ مجھے آتے جاتے مردوں اور عورتوں کے دھکے لگ رہے تھے، مگر مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ میں نے جو آج محسوس کیا ہے وہ اب سے پہلے نہیں کیا تھا۔ ایک لمبا سفر کر کے یہاں آنا اور کعبے کو دیکھنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے دل کی یہ حالت زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ دل چاہتا ہے کہ میں آج کا ہر پل پورا ہفتہ یہاں گزار دوں، کعبہ کی طرف دیکھتا رہوں اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ میں بہت خوش ہوں اور اسی خوشی میں سر جھکا دینے کو دل چاہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں ہر چیز کو اپنے میں جذب کر لینا چاہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارے گناہ دھل گئے ہیں، ہر درد کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے سارے گناہ دھل گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنے پاک ہو گئے ہیں جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ اپنی پوری معصومیت لیے ہوتا ہے۔ عمرے کے تمام ارکان پورا کرنے کے بعد سمی نے اپنا سر صاف کروایا۔ بہت سے مسلمان عمرے کی تکمیل کے لیے علامتی طور پر تھوڑے سے بال کٹوا لیتے ہیں اور کچھ سمی کی طرح پورا سر صاف کرواتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ایک عمرہ اپنے مرحوم بھائی کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ مکہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ وہ صرف 21 سال کا تھا جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ صرف 21 سال کیا ہوتا ہے؟ میں سوچتا ہوں مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں اسے عمرے کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ طواف اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد سمی واپس اپنے گھر بیت المقدس لوٹ جائے گا۔ ہمارے چاروں زائرین کا جذبات اور احساسات میں ڈوبا دن ختم ہوا۔ یہ وہ دن ہے جو ان کی یادوں میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ یہ اس سفر کا نقطہ عروج تھا جس کا انہوں نے زندگی بھر انتظار کیا۔ ایک ایسا سفر جو بر اعظم در بر اعظم اور نسل در نسل پھیلا ہوا ہے۔ اس سفر میں ہم اسلام کے اس راستے پر چلے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور ان کے پیغام سے متاثر ہو کر وجود میں آنے والی عظیم الشان مساجد کو دیکھا، ان کے بارے میں جانا۔ ہم نے اسلام کے 5 ارکان کا بھی جائزہ لیا جو ایک مسلمان کی زندگی میں شامل ہیں۔ شہادت کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اور عمرہ۔ ہم نے روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کی اہمیت کو سمجھا اور یہ جانا کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان اپنے عقیدے کے مرکز مکہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ مکہ میں ہم نے مسلمانوں کو عقیدت میں اس طرح ڈوبا ہوا دیکھا کہ وہ کیفیت دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئی۔ اس مقناطیسی مرکز سے جڑی ہوئی عقیدت جس نے آج 1 ارب سے زائد افراد کو اپنے دائرے میں لے رکھا ہے، یہ ہیں اسلام کے پیروکار مسلمان۔